Glory to Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Thank you for this day the Lord has given us. Today is the 29th day of the School of Holy Spirit. I'm so excited today to give you the deep revelation as we have only 2-3 days. And I hope you are also all are very excited. आपको मालूम काना के शहर में जब दाखरस घट गया तो लोग पहले यीशु की माँ के पास गए, बाद में यीशु के पास आए माँ के कहने से। और जब सब कुछ हो गया, वहाँ मिरेकल हो गया, दाखरस सर्व किया गया, तो लोगों ने कहा लोग शुरू में अच्छा देते हैं, लास्ट तक अभी भी आप इतना बेस्ट वाइन सर्व कर रहे हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि जो बेस्ट वाइन है वो प्रभु ने लास्ट डेज के लिए रख रखी है। तो आज कल परसों आप मिस ना करें, ईगरली वेट करें और वो जो बेस्ट वाइन आपके लिए रखी गई है और उससे आप आशीषित हों। आपको मालूम जो दूध भी बॉयल करते हो तो लास्ट में खुरचन रह जाती है। हलवाई जब मिठाई बनाता है वो खुरचन बहुत टेस्टी होती है। सो लास्ट टाइम में जो है वो बेस्ट रखा जाता है। तो मेरा दिल कहता है कि प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। सो बी रेडी फॉर दैट बेस्ट। ओके, आइए हम 2-3 मिनट आराधना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भोर को उठे होंगे और सब लोग जो प्रभु ने गिफ्ट दिया है आत्मा में प्रार्थना करने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना सीखता चला जाएगा। अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि अरे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या मुझे आ नहीं रहा, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, डोंट थिंक ऑल दैट थिंग। टैंक फुल है पानी का, जस्ट आपने टोटी को घुमाना है। जैसे ही आप टोटी को घुमाएंगे वो टैंक से पानी आने लग जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, अपनी जुबान को खोलेंगे, वो बहने लगेगा। जीवन जल की नदी अब आपके अंदर है, आप उसे बहाएं। आइए उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Chandro rodho le rave shekere dheri rava rira la lava oro loro daraba shekere deleve shekorolo labu ralabara ribara la raba
Shakarada Shokere Derebe Relenava Rivarambari Laraba Shekere Deleve Sakhuru Oh, 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 Rava Ore Ke Re Riba Sheke Rava Ralava Bari Dalava Ricolore de debe Sambrarabra kirabo Shondorolo Orahalalari dala Shekere dele debe Shekiri kiri riba Rabrarika Ora la 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 basha kurudulu Ribalana baba shandare Re binalana bashanduru Rabrariklava korabalana bashanduru do linebe Ori brari kala halalaba idara lalaba shindoro dolona babari kelini kilina hakbare kira balana khalini bishidoro dolona bara brari klabala labashandari dalihini be. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Abba Father. I thank you so much. Abba, my daddy, oh my papa, my loving daddy, my loving father, thank you for loving me, thank you for remembering me, thank you for this new day, thank you for your beautiful gift, Lord. Father, you have given me your son. I praise you for your son. I worship you for your son. Thank you for the incredible gift, Father. Thank you so much for your beloved son. Your beloved son is my Lord, is my King, is my good shepherd. He is my Savior. I trust in Him. I believe in Him, Father. Thank you, Jesus. I thank you so much. You have chosen me. You have appointed me. And you have anointed me with your Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Jesus, I thank you that you are alive. I worship you. Oh, Jesus, I follow you. I love you, Jesus. My Jesus, I love you. You are my bridegroom. Oh, yes, Lord, you are the head of church. Thank you for your precious word. Thank you for your precious Holy Spirit. प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु जी। आपने मुझे उत्तम स्थान रहने को दिया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए, उत्तम भोजन आपने खाने को दिया है, उत्तम संगी साथी दिए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद आपकी इस महान सेवा के लिए प्रभु जी, उस महान बुलाहट के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड। Thank you for your attention. Thank you for your grace, Jesus. Oh, I thank you. I honor you. I respect you. I love you, Lord. Thank you, thank you, thank you for the precious calling, Lord. Oh, you have given me the mystery of the Word of God. I thank you. Thank you for making me steward of the Word of God. Jesus, you are the mystery of the Almighty.
all the treasure of wisdom and knowledge in you, and you are the mystery of the God Father, and you are living in me. You are living all the 45 student Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are rooted in you. Oh, we are rooted in you, Lord. Lord, thank you, Holy Spirit. Prepare us to meet the King of Kings. Prepare us. प्रभु हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बना दे, मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र प्रभु हमारे अंदर बनने लगे। पवित्र आत्मा ये कार्य कीजिए प्रभु। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। Fill us, Lord, fill us, Lord, fill us, Lord, with your fullness. We want to carry you. We want to carry your precious name. We want to carry your precious word. We want to carry your glory. Yes, Lord, wherever we go, Lord, we will represent you. We will reveal you. We will reflect you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are with me, you are in me, you are upon me. Rabalina Hakbare Dilina Hakbaru Shukharudululu Bushibere Dilina Hakbara Rakhana Handari Delini Shibere Dilina Babare Rolono Kolona Hakbare. Thank you, Lord. I bow before you. Jesus, I kiss your holy feet. Thank you for this day. Thank you, Lord. We are on the 29th day of the School of Holy Spirit, and you are teaching us, your Spirit is teaching us. We all are here as a student, Lord. We are sitting at your feet to eagerly hear your voice, eagerly hear your precious word. Now, Holy Spirit, you take over. You take over this session and you speak. Thank you for opening our eyes. Thank you for opening our ear. Thank you for the opportunity you have given to us. Thank you for this time. Thank you, Lord. We glorify you, Lord. Oh, we glorify you. Okay. प्रभु यीशु जी के नाम से हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ रोमन 8 आपने पढ़ लिया होगा और कल का वचन जो मैंने आपको याद करने के लिए दिया था उससे याद किया होगा। आप यहाँ होते तो मैं सुनता और कि आप मेरा विश्वास को रखे होंगे और आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे होंगे। डोंट डिसीव योरसेल्फ, है ना। मुझे धोखा दिया जा सकता है लेकिन आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने याद नहीं किया है तो उसे याद कर लें। और आज का होमवर्क मैं पहले ही दे रहा हूं। 2 Corinthians 3rd chapter 17 verse, 2 Corinthians 3rd chapter 17 verse याद करना है। और मैं रिमाइंड कर दूं आपको कि कल दोपहर तक, लंच टाइम तक मुझे आप अपनी टेस्टमनी भेज दें। ऑडिबल वॉइस में 3 मिनट का हो और केवल आप अपना नाम बोलें और आप अपने जगह का नाम बोलें। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम कर्ण है तो आप कहें कर्ण बहादुर फ्रॉम नेपाल, दैट्स ऑल। और आपको सिर्फ जुलाई के महीने में जो टीचिंग आपने ली है, इस टीचिंग से आपने क्या सीखा, आपके लिए फायदेमंद थी या नहीं थी, है ना। वॉट एवर यू वांट टू से एज ए टेस्टमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ओनली फॉर दिस स्कूल। कोई पुरानी बात नहीं हो और मैं कल को क्या करना चाहता हूं ये भी मत बोले, जस्ट टू द पॉइंट। क्योंकि जो क्लोजिंग मैसेज होगा उसमें मैं 2-3 जो सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे कनेक्ट कर दूंगा ताकि लोग उस गवाही को सुने। सो सारी बातों के द्वारा प्रभु जी की महिमा हो। तो आप हिचक ना करें, डोंट फील शाई, डोंट हेजिटेट टू गिव द टेस्टिमनी।
whatever the Lord has done into your life in these 1 month day, you must say it is God's given time to you. God has given this opportunity to you. When you give the testimony, you are glorifying Jesus. The people who will hear, they will rejoice. Your joy will be completed. Your faith will increase. And the people who will listen, their faith also increase. And fourth thing, the devil will be shamed. आप शैतान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो यीशु की गवाही दें, शैतान लज्जित हो जाएगा. तो when you give the testimony, these four things will done. Let's see, you indirectly you got this teaching. What will happen when the person give the testimony? Four things will happen. The name of the Jesus will be glorified. People who hears, their faith increase. The person who is giving testimony, he will rejoice, and devil will shame. Amen. So give glory to the Lord and smile, and write down the title. What the title I have given is a double portion of the Holy Spirit. Double portion of the Holy Spirit. And you know, this double portion is given in the Old Testament. है ना, आत्मा का दूना हिस्सा, ये कहाँ पर है मेंशन है? पुराने नियम में. और आज का जो टीचिंग होगा उसका आधार, बल्कि मैं समझता हूँ आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो कल भी हम इसी को लेंगे. 2 Kings 2nd chapter 1 to 15. You have to read 15 verses. And in your personal time, you can meditate, study these 15 verses, and you will get to know many things. If you read this chapter, in 9th verse, actually, Elisha asked to Elijah, let there be double of your spirit on me. When Elijah asked to Elisha, ask what I shall do for you. Then Elisha said, let there be double of your spirit on me. जब एलिया ने एलिशा से कहा, मांग तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, मैं तुझे क्या दूं? तब एलिशा ने एलिया से कहा, तेरे ऊपर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए. आपको याद आता है पहला राजा उसका 3रा अध्याय के 5 पद में, 1 King 3rd chapter 5 verse, God appeared to the Solomon, and the same thing he said to Solomon, Solomon, ask, what shall I give you? Ask and you will be given. Same thing Elijah is saying to Elisha, ask what I shall do, and see what Elisha is asking. Elisha said to Elijah, let there be double of your spirit on me. जो तुझ पर आत्मा है, जिस आत्मा के अधीन तू है, जिस आत्मा में होकर तूने ये जीवन जिया, सेवकाई की, भविष्यवक्ता की सेवकाई की, चिन्ह चमत्कार किए, एलिशा ने अपनी आंखों से देखा था, और इसलिए एलिशा कह बैठा कि तुझ पर जो आत्मा है उसका दुगना अभिषेक मुझे मिले. आज जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने हृदय को खोलें. प्लीज ओपन योर हार्ट and sit at the feet of Jesus with burning desire, deep desire in your heart, great thirstiness and hungerness of the fullness of the Holy Spirit. Jesus said, यीशु ने कहा, जाने से पहले उन्होंने बोला, तुम
जो काम मैं कर रहा हूं उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। Amen. Amen. How many are you thirsty for the Holy? I said, how many are thirsty for Holy Ghost? Check yourself. What is the deep desire of your heart today, right now, when I am speaking? Check your heart. Look inside of your heart and see what is going on in your heart, what you want from Lord. He's just standing before you and he's saying, ask what you want from me. What should I give to you? Oh, you must be prepared. Don't waste time. Don't waste to think, what should I say? It should be in your heart. Tell him immediate, Lord, I want you. Don't compromise less than Jesus. Don't ask the things of Jesus. Don't ask the things of the world. Ask Jesus from Jesus. Tell Jesus, I need you. I need you. I need you. You are my need, Lord. You are my sponsor, Lord. You are my support, Lord. I need you. He will come in you as a third person of Trinity, because Holy Spirit and Jesus are one. Prophecy from Joel 2:28 is already fulfilled. योएल नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी की गई वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। आपको मालूम, एक व्यक्ति को अगर बचाने का सवाल आ जाए, सारा जमाना एक तरफ हो और एक व्यक्ति को बचाने का प्रश्न हो, सब मिलकर भी उसे नहीं बचा सकते जब तक कि परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद ना करे। No one can change a person. Man's heart is like a fish in water. It will slip out. Some man's heart is wicked. That is another thing. But it's required the touch of the Holy Spirit. Oh, Isaiah said in chapter 6, Lord, मैं अभागा मनुष्य हूँ. And you know the Holy Spirit touched his lips. Today it should be your prayer. आज आपकी प्रार्थना होनी है, प्रभु मेरे होठों को छू ले, मेरे इनर मैन को टच कर और मेरे आउटर मैन को टच कर ला. टच मी. It's a require of the divine touch in your life. Hunger for God's touch. Ask, cry, weep. Just weep, spend time. Oh, God, I want your touch. Holy Spirit, I want your fullness. Oh, I want your hand upon me as the hand of the Lord is upon Ezra. Same way, Lord, let your hand come upon me. When the hand of Lord come upon you, it means the Holy Spirit is upon you. In Old Testament, it is written, let the hand of God come upon me. In the book of Ezra, Ezra said, the hand of the Lord is upon me. परमेश्वर की कृपा की दृष्टि मुझ पर है, उसका हाथ मुझ पर है. उसका हाथ मुझ पर होने का मतलब नए नियम में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है. Jesus said in Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. Today me and you have to say, have to confess, have to proclaim all the time. Think over this and say through your mouth, shout way, in a great faith way, from the deep inner way. Speak out this word and say, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Oh, Rabalina Hakbare Delina Handari Deline Be. Oh, yes, Lord. Thank you. Your Spirit is upon me, oh Lord. Listen, if the hand of God is on any person, that person will be used by the God, and that person is the person who will change the nation. अगर आज
वो हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, तो मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप अपने एरिया को यीशु के लिए जीत लेंगे। आप वो व्यक्ति हैं जो अपने देश को जीतने पाएंगे। अब वो टाइम नहीं रहा कि इंडिविजुअल व्यक्ति को सेव किया जाए। अब तो गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले, सिटी के सिटी, टाउन के टाउन यीशु के लिए जीते जाएंगे। बट condition is one, that the hand of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord is upon you. If you are a person who are full with the Holy Spirit, who are full with the Word of God, you are carrying the anointing of the Holy Ghost and the Spirit of the Lord is upon you, then you are that person who will change the nation, and change nation will bow before Jesus. Today your turn has come. Listen, your turn is going to come. It is your time. According to 1 Samuel 10:6, you are going to be converted. You are going to be transformed into another person. Yes, when the Spirit of God came upon Shaul, whom the Lord had chosen as the first king of Israel, then that time the Spirit of the Lord came upon him, and Saul converted into different person. I am giving you the prophecy. Listen, if you have the ear, listen what the Spirit of the God is saying. You are going to be changed into another person. Today is your day. I said, today is your day. 9:30 is your day. Receive this right now, this moment. I release that anointing. Be filled with the Holy Ghost. Receive it in Jesus' name. Amen, amen, amen. Oh, hope for India, hope for Indonesia, hope for Pakistan, hope for Nepal, hope for Bangladesh is the person who is carrying that anointing, who is full with the Holy Spirit. Yes, my dear, hope for your country's salvation is the Holy Spirit. Answer is Holy Spirit. Oh, I again said it. Answer is the Spirit of the Lord. Holy Spirit people will change the India. Holy Spirit people will change the Nepal. Holy Spirit people change the Indonesia. Holy Spirit people change the Pakistan. Holy Spirit people change Bangladesh. Yes, ask fullness of your Holy Spirit. Yes, overflowing Spirit. We need Lord overflowing. मेरा कटोरा उमड़ने लगे. हो जीवन जल की नदी बहने लगे. In the same way as had done in the upper room when the 120 people are praying, according to Acts chapter 2, 1 verse 1 and 3. You read it. The fire came over there. Tongues came over there. Wind came over there, rushing sound came over there. These are the manifestation. But in fact, in reality, it was God who came inside of them. Oh, rahalalaba. When you fill with this experience, you will experience Jesus. You will experience your daddy. Oh, the God himself will come. Why 3,000 came in very first message of Peter? Why? When Peter preached, 3,000 souls saved. Because Peter was full of God. Lord, fill me with yourself. This is your prayer today. You can pray with me. Oh Lord Jesus, my Savior, fill me with yourself. I want you in me. I want to be filled with the God. I want to be filled with the Holy Spirit. Oh, yes, yes, yes. When you will carry this glory, when you carry this anointing, when you carry this presence of the Almighty, oh, things will be changed. Wherever you go, atmosphere will change.
So how we will receive this fullness, how we will receive this double portion of the Spirit, we will learn how Elisha received the double portion of the Holy Spirit. हम सीखेंगे एलिया और एलिशा से कि कैसे एलिशा ने एलिया के ऊपर जो आत्मा था उसका दुगना भाग को प्राप्त कर लिया. Are you interested to listen this teaching? Really you want? You are ready? I can tell you, assurance you, you will really be blessed. You will really be enjoy. Oh, I can feel His presence. He is very much with me here. Holy Spirit is very much eagerly ready to teach you. Listen, first I am going to read the passage, and today I will read in English and Hindi both. It will take time, I know. Teaching takes time, but we have to learn. It's not a preaching. For 20-30 minutes I will preach. No, you have to give concentration. I need your attention. Please listen the word of God. It's from 2 Kings, 2nd chapter. I will read 1 to 15. Yes. Now when the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. And Elijah said to Elisha, please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel. But Elisha said, as the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you. So they went down to Bethel. And the sons of the prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that today the Lord will take away your master from over you? And he said, yes, I know it. Keep quiet. Elijah said to him, Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho. But he said, as the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you. So they came to Jericho. Hallelujah. Oh, Ribenihe Kibilina Khabara. The sons of the prophets who were at Jericho drew near to Elisha and said to him, do you know that today the Lord will take away your master from over you? And he answered, yes, I know it. Keep quiet. Then Elijah said to him, please stay here, for the Lord has sent me to the Jordan. But he said, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. So the two of them went on. 50 men of the sons of the prophets also went and stood at some distance from them, as they both were standing by the Jordan. Then Elijah took his cloak and rolled it up and struck the water, and the water was parted to the one side and to the other, till the two of them could go over on dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. And Elisha said, please let there be a double portion of your spirit on me. And he said, you have asked a hard thing. Yet, if you see me as I am going, taken from you, it shall be so for you. But if you do not see me,
it shall not be so. And as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them. And Eliah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And he saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces. And he took up the cloak of Eliah that had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. Then he took the cloak of Eliah and that had fallen from him and struck the water, saying, where is the Lord, the God of Eliah? And when he had struck the water was parted to the one side and to other, and Elisha went over. 15 verse. Now when the sons of the prophets who were at Jericho saw him opposite them, they said, the spirit of Eliah rests on Elisha. And they came to meet him and bowed to the ground before him. Amen. हिंदी में पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए।
फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर 15वां वचन, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर। तो हम लोग यहां से सीखेंगे एलिया और एलीशा ये दोनों एक साथ साथ रह रहे थे। एलीशा एलिया का असिस्टेंट था या यूं कह लीजिए उसका चेला था, और एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, प्रॉफिट। उसके बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, केवल इतना मेंशन है कि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था। प्रॉफिट की पहचान क्या है कि वो ऑल द टाइम ही विल बी इन द लॉर्ड, इन द वर्ड, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहेगा। तो एलीशा उसके साथ था, एलिया की दिनचर्या को वो देखता था, उसका उठना बैठना चलना फिरना प्रार्थना करना सेवा करना सब वो देख रहा था। इसको कहते हैं जॉब द ट्रेनिंग जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। यीशु ने कोई बाइबल स्कूल नहीं खोला, लेकिन वो अपने चेलों को अपने संग रखते थे और चेले देखते थे अपनी आंख से यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, घर पे जीवन कैसा है, बाहर कैसा है। तो वो यीशु मसीह को अपने बारे में कहने की आवश्यकता नहीं थी, चेले वो सब देख कर सीखते हैं। इसको जॉब द ट्रेनिंग कहते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं एलीशा एलिया के चरणों पर बैठ के ये ट्रेनिंग ले रहा था। और एक टाइम आया कि जब एलिया के इस धरती से वापस जाने का, चूंकि वो प्रॉफिट था, वो कल को क्या होने वाला है वो जानता था। अगर आप प्रॉफिट के संग रहेंगे तो प्रॉफिट का अभिषेक आपके ऊपर आने लगेगा। अगर आप प्रचारक के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर प्रचारक की अनॉइंटिंग रिलीज होने लगेगी। अगर आप प्रेरित के साथ हैं तो प्रेरिताई अभिषेक आपके ऊपर आने लगेगा। तो जिसके साथ आप हैं उसका असर आने लगता है। आपने सुना है संसार के लोग एक कहावत कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो जिसके साथ रहेंगे वैसा अभिषेक आएगा। यहां तक बाइबल में लिखा है, अगर कोई मेरे किसी भविष्यवक्ता को एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो उसे कौन सा रिवार्ड मिलेगा? भविष्यवक्ता का रिवार्ड मिलेगा। अगर आप मुझे प्रॉफिट जानते हुए कुछ ऑफरिंग करेंगे तो इसका रिवार्ड आपको प्रॉफिट का मिलेगा। अपोस्टल ट्रीट करते हुए रिवार्ड मुझे कुछ ऑफर करते हैं तो उसका रिवार्ड आपको एज अपोस्टल मिलेगा। इस डिपेंड है ना, ये बातें गहरी बातें हैं। आप किसकी संगति किसकी सहभागिता में हैं। एलिया जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। अगर आप पहला राजा 17 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके पहले पद को, 1 किंग 17th चैप्टर 1st वर्ड, वहां पर एलिया का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या है वहां लिखा है, एलिया जो गिलाद के परदेशी देश में था, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख वो उपस्थित रहता हूं, तो वहां पर उसका परिचय है। फर्स्ट टाइम एलिया का जिक्र हुआ है और वहां पर मेंशन है कि वो ही वॉज ऑलवेज बी इन द प्रेजेंस of the Almighty God, the God of Israel, उसके सामने वो रहता है all the time। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, एलिया एलीशा दोनों साथ साथ थे।
और जब एलिया को पता चल गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है कि मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊं, तो उसने एलिशा से एक बात कही। एंड ही सेड टू एलिशा के मुझे यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को जब था, तो एलिया और एलिशा दोनों की शुरुआत हुई गिलगाल से। और जब उसने गिलगाल से स्टार्टिंग की तो वो कहता है कि अपने साथी एलिशा से कहता है, यहोवा मुझे बेतेल तक जाने को बोलता है। उसने अपनी ओर से छिपाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि एलिशा उसके साथ साथ था, तो जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप सब कुछ समझने लगते हैं उसके बारे में। तो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि एलिया और एलिशा इन दोनों ने सफर स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड देयर ट्रैवलिंग, देयर जर्नी फ्रॉम गिलगाल। जब ये दोनों बात कर रहे थे, दोनों साथ साथ थे, तो वो जगह क्या थी? उस जगह का नाम बाइबल कहती है गिलगाल। पहले ही आपको वचन में मिल जाएगा कि एलिया एंड एलिशा वर इन द गिलगाल एंड दे वांट टू गो बेतेल। सो इससे पहले कि हम आगे को चलें, मैं यहां पर रुककर आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्लेस पर वो थे और जिस प्लेस पर आज आप हैं, सुने, आज जो मैं टीचिंग आपको दे रहा हूं इसमें प्रोफेटिक लुक होगा। एक नबूवत की नजर से प्रोफेटिक व्यू के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। एलिया और एलिशा गिलगाल से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और आज की तारीख में आप जहां पर रुके हुए हैं, जिस जगह पर आप हैं, आपका गिलगाल वो है। So you have to also start your journey to receive the fullness of the Holy Spirit from your Gilgal. So where you are right now, that is your Gilgal. You treat the place as Gilgal. When I say to treat that place Gilgal, don't think only physical realm. For example, if I am in the Banbasa, my town name is Banbasa, your town name is Moradabad. So in Moradabad, mission compound is your Gilgal. This is physically realm, this is worldly way. But आप जो मुरादाबाद के मिशन कंपाउंड में हैं, उस वक्त अंदर से जो आपकी स्थिति है, द स्पिरिचुअल लेवल, जिस जगह आप खड़े हैं आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ, जिस रिश्ते में आप इस वक्त खड़े हैं मुरादाबाद की धरती मिशन कंपाउंड पर, तो वो जो आत्मिक रीति से जो जिस लेवल पे खड़े हैं वो आपका गिलगाल है। सो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई वांट टू से? डोंट टेक इट ओनली द सिटी नेम। As I am in Banbasa, the same time, at what level is my spiritual life? We have to start from there. So what I want to say you, the place where you right now, that is your Gilgal. So you have to start your journey, spiritual journey, to receive the Holy Spirit anointing from your Gilgal. So you have to understand the meaning of the Gilgal. What does it mean? जब मैं गिलगाल कहता हूं तो गिलगाल का अर्थ क्या है? The meaning of the Gilgal is the place of confusions. Place of confusions means the things are not clear, no clarity, no vision, always doubting condition, repeating same thing again and again, same mistake again and again. तो गिलगाल का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या आपसे कह रहा हूं? गिलगाल की स्थिति ऐसी है कि सेम मिस्टेक यू आर डूइंग अगेन अगेन, नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. Inside you want to hear the voice, inside you want
the touch of Holy Spirit. Inside you want to be used by God, but no spiritual progress. You are stuck in spiritual level. In the same point you are stuck. Maybe you are receiving some healing. Maybe you are receiving the answer of your prayer. Some prayer is answered. You are listening the preaching, going to the church. Sometimes you have got the experience of hot and cold. Till you move from this situation, till you receive the growth from this situation, you will not get the fullness of the Holy Spirit. So if you want the double portion or the fullness of the Holy Spirit, then you have to move from the present situation. जिस लेवल पर आप हैं, उस लेवल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. You have to move from there. You will not get fullness till you come out from that stage. So Gilgal is the stage where you are stuck. There is no growth in Gilgal. There is no growth, no progress, and you all are stuck over there. Inside you want, अंदर से आप चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, मैं यीशु के लिए चमकूं, यीशु के लिए सेवकाई करूं, मेरी सेवा बढ़ने लगे, बहुत सी आत्माओं को जीतूं, राज्य को स्थापित करूं. लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं, घटियां हैं, जो दुर्बलता है, जो घटी है, लैकिंग है, और जो आपकी समझ है, जो आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, बार बार एक ही प्रकार की गलतियां हो रही हैं, बार बार भूल चूक हो रही है, बार बार कोई सिखाता है, बताता है, इसलिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप पवित्र आत्मा के दूनी अभिषेक को चाहते हैं तो आपको इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा. तो इस जगह जहां इस वक्त आप खड़े हैं वो आपका गिलगाल है. अल्लाह बाइबल कहती है होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 15 पद में, एंटर नॉट इनटू गिलगाल, गिलगाल में न आओ. 9 अध्याय के 15 पद में लिखा है, एवरी इवल ऑफ देयर्स इज इन गिलगाल. उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं पर मैंने उनसे घृणा की. उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा. सो गिलगाल इज द प्लेस वेयर ऑल इवल थिंग्स. दैट्स व्हाई गॉड इज सेइंग डोंट गो टू गिलगाल, कम आउट फ्रॉम द गिलगाल. आमोस की पुस्तक 5 अध्याय के 4-5 पद को पढ़ना, वहां लिखा है, ना तो गिलगाल में प्रवेश करो, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा. You will go in the bondage. If you are still in the Gilgal, then you are still in the bondage. Do not enter into Gilgal. Amos 5:5 says, do not enter into Gilgal. Gilgal shall surely go into exile. So 1 Samuel 10:8 says, then go down before me to Gilgal, 7 days you have to wait, then I will show you what you shall do. Listen, जब साउल का अभिषेक करने का टाइम आ गया और सैमुअल नबी वहां पर गया, तो सैमुअल नबी क्या बोलता है, आप पहला सैमुअल 10 अध्याय को पढ़ना, कि परमेश्वर ने जब शाऊल को इजराइल पे राजा होने के लिए चुन लिया तो सैमुअल नबी को भेजा था कि वो कुप्पी में तेल ले और उसके सिर पर उड़ेल दे और उसका अभिषेक करे. और जब उसने ऐसा कर दिया, बाइबल कहती है पहला सैमुअल 10:6 के अंदर कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो नबूवत करने लगा और वो परिवर्तित होकर दूसरा मनुष्य बन गया. और तब सैमुअल ने कुछ इंस्ट्रक्शन उसे दी, आगे क्या होना है और कैसे करना है. नाउ यू आर another person, you are different from this worldly people, you are chosen now and Lord has chosen you to be the king, first king of the Israel. So उसने आगे कहना शुरू किया कि जब तुझे ये चिन्ह दिखाई पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले,
when you are anointed, when the Spirit is upon you, whatever the opportunity you got, you do it and you will get the success, क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा। तब बाइबल कहती है उसके 8वें पद में कि तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, तब मैं तेरे पास पहुंच के तुझे बताऊंगा तुझको क्या क्या करना है। Now see here, one side he was filled with the kingly anointing. शाऊल को इज़राइल पे राजा चुन लिया गया है और सैमुअल हन्ना का बेटा पहला प्रॉफिट बना है और वो भविष्यवक्ता की सेवकाई कर रहा है। उसने उसको अनॉइंट कर दिया है और उसने इंस्ट्रक्शन दी कि तुम गिलगाल को पहुंचो, मैं वहां पर 7 दिन के अंदर अंदर पहुंचूंगा और वहां आकर मैं ऑफरिंग दूंगा, मेल बलि ओम बलि चढ़ाऊंगा और फिर यहोवा जो मुझसे कहेगा वो मैं तुझे बताऊंगा, तब तुझे करना है। ए किंग, सुन रहे हो? तुम्हें तब करना है जैसा मैं कहूंगा। तो ये कनेक्शन है, परमेश्वर अपने नबी को बताएगा, नबी लीडर्स को, किंग को बताएगा, किंग जो है वो पब्लिक को बताएगा। सेम वे परमेश्वर का अभिषेक जब आप पे होगा तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। इफ यू आर ए लीडर, यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड, यू आर ए मिनिस्टर, in your word if I say you are a pastor, you have to receive from the God. The Spirit of the God will give you from the Jesus, or then you have to give to the people, your believer. So where the pulpit will go, there this believer, their church will go. So इस बात को समझें जरा सा, मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। और शाऊल जो था वो गिलगाल पर जाकर रुक गया। गिलगाल वो प्लेस है जहां क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कंफ्यूजन वाली स्थिति। क्यों? क्योंकि यहां पर शाऊल को इंस्ट्रक्शन दी है सैमुअल ने, आप गिलगाल तक बस केवल पहुंच जाओ, मेरा इंतजार करो। और वेट करना किसी को अच्छा लगता नहीं है। वो भी राजा को कहा जाएगा तू इंतजार कर, तो और उसे इंतजार करना नहीं आएगा। हाउ कैन वेट अ किंग से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यू हैव टू वेट नॉट फॉर 1 day बट 7 days। 7 दिन, पूरे हफ्ते का टाइम ले लिया उस प्रॉफिट सैमुअल ने कि जब मैं आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। सो कल्पना कीजिए, अब वो राजा वहां पर मौजूद है। कौन राजा? शाऊल। और वो इंतजार कर रहा है, इसे 7 दिन हो गए कि अब नबी आएगा, वो बताएगा, तब मुझे कुछ करना है। लेकिन इंतजारी नहीं हो रही। तो सुनिए फिर क्या होता है। बाइबल कहती है, पहला सैमुअल और उसके 15वें अध्याय को मैं उसको आपको पढ़ दूं, देखिए फिर क्या घटना घटती है वहां। और आला बाबा शीखेरे दिले निबे सिंदोरो दोलो ना बाबा रिडल्ला ना हकी बेरे और आला ना कबा सिंदोरो दोलो नहीं, वो 15 अध्याय नहीं, 13 अध्याय में है। 1 Samuel 13 chapter verse 7 onward, अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एंड वहां पर ऐसा मेंशन है कि कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद गिलाद के देश में चले गए, परंतु शाऊल जो था वो गिलगाल में ही रहा। वहां वो सैमुअल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जो होता रहा, परंतु सैमुअल गिलगाल में न आया। उसको आने में देरी हो गई और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, अरे मैं क्या करूं, सब लोग तो इधर उधर जा रहे हैं और नबी ने कहा था आऊंगा नहीं, वो आया भी नहीं, पता नहीं कौन से जाम में फंस गया है। तब शाऊल ने क्या किया, होम बलि और मेल बलि को अपने पास मंगवा लिया, क्योंकि उसके मन में था मैं तो राजा हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। उसने नबी को हल्के से लिया, परमेश्वर की बात को हल्के से लिया
और बाइबल में लिखा है जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि सैमुअल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सैमुअल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर जा रहे हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया, फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हो गए हैं, मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे हैं, वो अटैक कर देंगे, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गिलगाल द प्लेस इज द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। आपने वादा पूरा नहीं किया, आपने भी डिले कर दिया, पब्लिक भी भाग रही है, दुश्मन अटैक करने को तैयार है, होम बलि यहाँ रखी है, मेल बलि रखी है, तो मैंने ऐसा किया क्यों ना मैं ही होम बलि मेल चढ़ा दूं ताकि जब तुम आओगे तुमने भी तो वही काम करना है। परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है केवल वही काम करें, जिस ऑफिस को प्रभु ने आपको दिया है उसी ऑफिस में काम करें। If you are an evangelist, then don't do the work of pastor. Be faithful in evangelism work. One day he will slowly give you this office. और आप जब इसमें ऑनेस्टी से काम करेंगे तो स्लोली वो आपको अपोस्टल बना देगा। तो जिस ऑफिस में अपनी कॉल को समझने की कोशिश करें, अपनी ही कॉल में रहें। तब मैंने शाऊल कहने लगा, तब मैंने सोचा फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। देखो उसने प्रार्थना भी नहीं की, पूछा भी नहीं। कई बार अपनी मनमानी करते हैं हम लोग। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ा दी, मीन्स हाफ हार्टेड, दिल से नहीं किया। सुनो बाइबल की खतरनाक बात, पहला सैमुअल 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है, नबी सैमुअल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। ओ किंग, यू हैव फुलिशली, यू आर फुलिश इन द आईज ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, क्योंकि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। माय डियर, क्या मैं ये पैसे से आपको पढ़वाना चाह रहा हूं? गिलगाल इज द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन, it's a place of waiting, no clarity what to do. The king is waiting over there. He's just killing his time. He can't wait. And the prophet is just some delay in coming. So he has used the office of the priest. Shaul was anointed for the king, but he entered into the priestly anointing with half-hearted. He offered the burnt offering. And the Bible says the Lord said, you have done the foolish work. You disobeyed me. You will not be continue as king. I have chosen a person who is own my heart. और तब शमूएल नबी ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम कर दिया है, और मूर्खता का काम किया है। गिलगाल का अर्थ समझ में आ रहा है। 15वें अध्याय के 12 पद में लिखा है पहले शमूएल में कि शाऊल, परमेश्वर कहता है 11वें पद में कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। कैन यू इमेजिन? फर्स्ट किंग जिसको बनाया गया पूरे इजराइल पे, उसको बनाकर परमेश्वर पछता रहा है।
जैसे उत्पत्ति 6 में उसने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। क्यों पछताया? क्योंकि शाऊल ने उसके पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, डिसोबीडियंसी। हमने पिछले दिनों में टीचिंग ली थी, when you have the fear of the Lord, when the Spirit manifests into the fear of the Lord, then you will obey, willingly obediency। यहाँ पर शाऊल ने आज्ञा का पालन नहीं किया, तब बाइबल कहती है सैमुअल का क्रोध भड़क गया और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। See the prophet, whole night he was in the presence of the Almighty, और वो दुहाई दे रहा है। 12वें पद में लिखा है जब सैमुअल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सैमुअल को बताया गया कि शाऊल तो करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया है और वो घूमकर फिर गिलगाल को चला गया है। सी 1 Samuel 15:12 says, Prophet Samuel rose early to meet Saul in the morning, and it was told to Samuel that Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself and turned and passed on and went down to Gilgal. See, उसने मॉन्यूमेंट स्मारक अपने लिए बना दिया। हमारे पास सेवा हमारी है नहीं है, सेवा प्रभु की है। हमारा राज्य स्थापित नहीं होना है, प्रभु का राज्य स्थापित होना है। हमारी प्रशंसा, हमारी चर्चा, हमारी बड़ाई नहीं होनी है, प्रभु की चर्चा, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा होनी है, प्रभु को महिमा मिलनी है। इसने ये ब्लंडर कर दी और फिर ये सब करके कारमेल से फिर वापस गिलगाल को चल गया। मैंने इतनी आयतें जो आपको बोली हैं, समझाई हैं, इसका अर्थ क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि गिलगाल वो प्लेस है, उस जगह को कहते हैं जहां आप अगेन एंड अगेन बार बार मिस्टेक करते हैं, लौट फेर के फिर वहीं आ जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम गिलगाल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारा वो अभिषेक, वो दूना हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए एलिया और एलीशा गिलगाल से बेतेल की ओर निकलते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं प्रोफेटिकली कि मुझे और आपको अपने गिलगाल वाली प्लेस से बाहर आना पड़ेगा। वी मस्ट कम आउट फ्रॉम द गिलगाल, द प्लेस ऑफ गिलगाल, वेयर देयर इज नो clarity, where there is all the time confusion, where all the time weakness, mistakes, again and again. We are in the flesh. We are doing fleshly work. We are walking through the flesh. Moment you come into the flesh, you will commit the sin, my dear. So always be in the spirit, be in the word. Spirit and flesh both are opposite to each other. So your Gilgal is your flesh, fleshly desire. The spiritual level where you are standing right now. Hear the voice of the Holy Spirit, what the Spirit is saying. Come out from your Gilgal, come out from your situation, the place where you are standing right now. Leave this गिलगाल। आपको मालूम, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बात और आपको बताऊं। गिलगाल में आदमी लौट फिर के फिर वहीं पर आ जा रहा है। जब तक आप गिलगाल से बाहर नहीं आते तब तक आपको आत्मा का दूना हिस्सा प्राप्त करने में दिक्कत होगी, नहीं मिल पाएगा। डिजायर है लेकिन मिल नहीं पा रहा। आपने एक पर्टिकुलर गेट होता है, लोहे के बने होते हैं और नीचे धुरी बनी होती है और उस गेट के 4 रास्ते होते हैं। ज्यादातर स्कूल कॉलेजेस में, ऑफिस में आपको दिखेगा। तो आपको एक कॉर्नर में एंटर करना पड़ता है उस गेट के, और उस गेट को आप गोलाई की सर्किल में घुमाते हैं और जैसे ही आपका टर्न आता है आप बाहर निकल जाते हैं।
अगर आपने उस टर्न पे बाहर नहीं निकले तो वापस फिर आपको वो चक्कर पूरा करना पड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो गिलगाल क्या है? वो यही गेट है। हम लोग हर बार हर रात को प्रार्थना करते हैं और हर रोज कहते हैं कि कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और जब टाइम आता फिर हम उसी सर्किल में घूम जाते हैं। तो हम आज तक इतने साल उसी सर्किल में घूम रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु जी मेरे को ये हो जाए, मैं वो हो जाऊं, मैं ऐसा करूं। बट सर्किल में आप हैं। आप जैसे ही वो टर्न आता है बाहर निकलने का, आप स्मार्टनेस दिखाएं और उस एरिया से बाहर निकलें। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब तक मैं और आप अपने गिलगाल से बाहर नहीं आते, हम अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। हमने बाइबल से पढ़ा, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. So they started from Gilgal. We also have to start from our Gilgal. Amen. Second verse is, Elijah said to Elisha, please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel. एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तुम यहीं ठहरे रहो। एलिशा स्मार्ट था। एलिशा ने बोला, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सी एलिशा, व्हाट एलिशा इज सेइंग, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. तो हमें, मुझे और आपको स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। परमेश्वर के बच्चों को विजडम और नॉलेज और आत्मा से जब आप भरे हैं तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आपके डिसीजन स्मार्ट होंगे। एलिशा ने स्मार्टनेस दिखाई और उससे कहा कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो स्वामी ने क्या कहा, एलिया ने क्या कहा, ओके फिर देन ओके, कम विद मी। और बाइबल कहती है कि वो उसके साथ बेतेल को पहुंच गया। नेक्स्ट स्टॉपेज क्या था? नेक्स्ट स्टेशन का नाम था बेतेल। तो व्हेन वी कम आउट फ्रॉम द गिलगाल, आवर नेक्स्ट स्टॉपेज इज बेतेल। व्हाट डज इट मीन? बेतेल का मतलब क्या है? बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अगर आप 28वां अध्याय खोलेंगे और 10 पद से आप अगर 20 पद या 22 पद तक पढ़ जाएंगे तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा। किसका? जैकब का। सो फ्रॉम गिलगाल टू बेतेल। बेतेल मीन्स हाउस ऑफ प्रेयर। Bethel is the place where God spoken with Jacob. Until you pray, until you listen God, until you spend the time with God, you will not come to the Bethel. If you want to reach to the Bethel, into the presence of the Lord, you have to spend time with Him. You have to pray. Bethel is the house of prayer. What I want to say you, when you go in prayer, then only you will come out from the circle. With prayer only you will come out from the Gilgal. So in book of Genesis chapter 28 verse 10 onward, वहां पर ऐसा लिखा है कि याकूब बेरशिबा से निकलता है। फर्स्ट टाइम वो अपने पिता के घर से बाहर निकल रहा है, ऑल अलोन, ही इज ट्रेवलिंग अलोन। और बाइबल बताती है कि रास्ते में रात हो जाती है। फिर वो एक पत्थर लेता है, ईंट। वहां पर तो जंगल में उसे कोई तकिया वकिया मिला नहीं, घर में तो तकिया था, लेकिन उसने एक पत्थर लिया, ईंट नुमा पत्थर, उसका तकिया बनाया और उस स्थान पे सो गया।
तो जब वो सोया तो रात में उसने एक सपना देखा, और उस सपने में देखता है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी पर खड़ी है और दूसरा सिरा उसका स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, और तू भूमि पर जिस जगह लेटा है उसको मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और बहुत सी प्रॉमिस वहां पर वो बोलता है यहोवा कि तेरा वंश भूमि के धूल के समान होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तेरा राज्य फैलेगा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुने, जब आप हाउस ऑफ प्रेयर में होते हैं तो हाउस ऑफ प्रेयर में परमेश्वर होता है। दाऊद ने भी कहा, मेरा दिल खुश हुआ जब लोगों ने कहा कि आओ ये परमेश्वर के भवन की ओर चलें। परमेश्वर की ड्योढ़ी पर रहना महल से रहने से कहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि अंदर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। सो परमेश्वर ने उससे कहा, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और इस देश में तुझे लौटा के लाऊंगा। मैंने जो कुछ तुझे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब याकूब जाग गया। देखिए, 4 ब्लेसिंग उसे मिली, फिर वो जाग जाता है। तो जब जागता है तो कहता है, अरे निश्चय इस स्थान पर परमेश्वर है, और मैं इस बात को जानता नहीं हूं। वो अपने घर से अगर नहीं निकला होता, वो उसका घर जहां से वो निकला पहली बार अकेला ट्रैवल करने, वो उसके लिए गिलगाल था। अब वो जंगल में किसी पर्टिकुलर भवन के अंदर नहीं, किसी पर्टिकुलर चर्च में नहीं, आकाश के नीचे जंगल में पहली बार वो लेटा है, पत्थर को अपना तकिया बनाकर। उसके मन में इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को जानता नहीं हूं। तब उसके अंदर परमेश्वर का भय आया। उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, वरन ये तो स्वर्ग का फाटक है। Oh, this is the house of God. Praise the name of Jesus. उसकी आत्मा ये गवाही देने लगी। Yes, उसकी आत्मा ये गवाही देने लगी कि he was afraid and said, how awesome is the place. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Oh, परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करने की इच्छा। Praise the Lord. So Bible says in 18 verse, so early in the morning, hello, not morning, early in the morning. आप उठ रहे हैं ना early in the morning? So early in the morning, Jacob took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on the top of it. तब भोर को जब याकूब उठा, उसने उस पत्थर को जिसका तकिया बनाया था सीधा खड़ा कर दिया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रख दिया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों मैं ये पैसेज आपको पढ़ाया? ऑयल इज नोन एज ब्लेसिंग, एज anointing, as the presence of Holy Spirit. So when he put on that ordinary stone that oil and dedicated and blessed with the oil, then he said, this is the house of God. Amen. Amen. So मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि एलिया और एलिशा ने जब अपनी यात्रा गिलगाल से स्टार्ट करी, बाहर आए, तो वो कहां पहुंच गए? बेतेल में। बेतेल का अर्थ है हाउस ऑफ प्रेयर। सो हम लोग जब अपने कंफ्यूजन वाली स्टेज से बाहर आते हैं, वीकनेस वाली स्टेज से बाहर आते हैं, तो बाहर कैसे आप आते हैं? केवल प्रेयर के द्वारा, वो भी आत्मा में। लिसन, एलिया एंड एलिशा, दे डिड नॉट स्टॉप देयर, they moved from Bethel to Jericho. Jericho means
spiritual warfare, place to destroy the work of devil, place to destroy the work of the bondage, place to get overcome on your situation. So people are praying, seeing vision. Only you must move for spiritual warfare. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब वो गिलगाल से बेतेल आए तो बेतेल में रुके नहीं रहे, बेतेल से आगे यात्रा प्रारंभ की और वो तीसरा स्टेशन उनका आया और उसका नाम था जेरिको, यरीहो। यरीहो वो स्थान है जहां पर आपका आत्मिक युद्ध होता है और आप अपनी उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। वो स्थान जहां आपको अथॉरिटी और डोमिनियन मिला हुआ है, जहां मृत्युलोक अधोलोक की कुंजियां इस्तेमाल करते हैं, जहां आप जो कुछ बांधते हैं वो स्वर्ग में बंधता है, जो कुछ पृथ्वी से खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। वो स्थान यरीहो है। प्रेयर प्लस एक्टिविटी इज इक्वल टू ट्रू मिनिस्ट्री। यानी एक तरफ प्रार्थना करना है और दूसरी तरफ एक्शन करना है, तब सेवकाई होगी। अगर आप केवल प्रार्थना करेंगे और एक्शन नहीं करेंगे तो मिनिस्ट्री नहीं हो पाएगी। एक मैं आपको टेस्टिमनी दूं, आपने नाम सुना होगा पास्टर ऑस्टिन का, जिनके बेटे आजकल जोएल ऑस्टिन चर्च चलाते हैं। उनको इंडिया में, उनके पापा को इंडिया में कहा जाता था पास्टरों का पास्टर। तो जब वो पहले नाइट क्लब में ही ड्रम वगैरह बजाते थे, जब वो प्रभु में आ गए तो और प्रभु के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, वो अपना समय प्रभु के साथ बिताने लगे। उन्होंने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उन्होंने कहा कि जॉन ऑस्टिन कहने लगते हैं कि प्रभु, जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। तो परमेश्वर उन्हें दर्शन देता है और परमेश्वर कहता है ऑस्टिन तूने अपने आप को तो कमरे में बंद कर रखा है, तो मैं तुझे कैसे इस्तेमाल करूं? कमरे से बाहर निकल, फील्ड में जा, तभी तो मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रेयर बंद कमरे में आपने प्रार्थना की, खुले में आकर आप एक्शन करें, तब सेवकाई होगी। यीशु को देखें, यीशु मसीह प्रार्थना में जीवन बिताते थे, समय देते थे और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उस पहाड़ी पर जब उनका रूपांतरण हुआ तो चेलों ने उनसे क्या कहा कि प्रभु जी हम यहां पर 3 मॉन्यूमेंट बना देते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आप के लिए। तो यीशु ने उनसे क्या कहा, नहीं नहीं, नीचे उतरो पहाड़ से, हमें अभी जाना है दूसरे गांव में, वहां भी सेवा करनी है। तो यीशु ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, जहां 4 विश्वासी इकट्ठे हुए तो हमने कहा जी यहां चर्च बना दो, बिल्डिंग बना दो। नो नीड फॉर बिल्डिंग। आप लोगों को आत्मा से भरें, वचन से भरें, वो लोग ही चर्च हैं और वो कैरी करेंगे उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को लेकर जाएंगे। यीशु ने कहा नहीं, इस सब को करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे दूसरे तीसरे गांव में जाना है, हम वहां प्रचार करेंगे, चलो मेरे साथ वहां चलो। आप देखिए जेरिको की दीवार कैसे गिरी, हाउ द वॉल ऑफ जेरिको फॉल डाउन, दे हैव वॉक्ड। उन्होंने दर्शन पा लिया, प्रार्थना कर ली, एश्योरेंस मिल गया, प्रॉमिस मिल गया कि ये दीवार कैसे गिराई जाएगी। जब यहोशू गया अपनी सेना को लेकर तो उसने उसका मुआयना किया। यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी, इतनी ऊंची थी और इतनी चौड़ी थी कि लिखा है रथ उस पर दौड़ते थे। यीशु की परदादी राहाब वैश्य का घर भी वहीं था, चट्टान उसी रोड पे। तो परमेश्वर वहां अपीयर होता है और परमेश्वर कहता है यहोशू तू क्या सोच रहा है, चंद हथियार लेकर, चंद अपने सैनिक लेकर इस दीवार को गिरा देगा?
नहीं, तुझे मालूम नहीं इस दीवार के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। वो अंधकार की शक्ति काम कर रही है। युद्ध मेरा और उसका है, संग्राम यहोवा का है। मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। तू क्या कर, तू केवल हर दिन एक चक्कर लगा ले अपने सैनिकों को लेकर इस दीवार का। ओह, कठिन काम नहीं था। और 7वें दिन 7 चक्कर लगा ले बस। तो अगर वो लोग आलस कर जाते और घर से बाहर नहीं निकलते और वो वॉक नहीं करते, वो सिटी का वॉक नहीं किया होता, प्रेयर वॉक जिसे आप कहते हैं, तो क्या होता? अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, यहोशू उसकी टीम, तो वो चमत्कार नहीं होना था। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मतलब है one side you have to pray, on the same time on the other hand you have to take the action. So परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर उनको स्ट्रेटेजी दे दी। अब इनको क्या करना था? वॉक करना था। और जब उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर काटे, बाइबल बताती है कि वो दीवार गिर गई। बोलिए आमीन, आमीन। सो एलिया और एलिशा इन्होंने स्टार्ट किया गिलगाल से, बेतेल को आए, बेतेल से जेरिको को आ गए। इसी प्रकार मुझे भी अपने उसी स्थान गिलगाल से स्टार्ट करना है और अपने आप को आत्मा में बनाकर आत्मा में प्रार्थना करनी है। अर्थात ऑल द टाइम वी हैव टू बी विद द लॉर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड। मैं मसीह में, मसीह मुझ में, ये होना है। और फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने क्या होगा? अंधकार की शक्तियां आएंगी, शैतान के राज्य को हमें समाप्त करना पड़ेगा। मुझे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में होकर गुजरना पड़ेगा। हम सबको एक युद्ध दिया गया है। वी ऑल आर इन द बैटल, और उस बैटल को आध्यात्मिक रीति से लड़ना है। हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं। आत्मिक हथियारों से अपने आप को आत्मिक रीति से सुसज्जित करना है, तैयार करना है। उन विचारों को कंडम करना है। हर ऐसी भावना, हर ऐसे विचार को जो मसीह यीशु के आज्ञा उल्लंघन में आती है, उसके विरोध में आती है, उसको बांधना है। और हर ऐसी इच्छा और आज्ञा को मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। बाइबल कहती है जेरिको से उन्होंने फिर आगे सफर शुरू किया। Jericho means place of spiritual warfare. So all the time battle, devil, you have to bind the devil's spirit. No need always to continue with this devil. Once you bind it, you be delivered, believe it, and further you have to go forward. Don't stay in the place of spiritual warfare only. सुबह शाम केवल युद्ध ही नहीं लड़ना। एक बार लड़ लिया, प्रार्थना कर दी, विक्ट्री हासिल हुई, आगे बढ़ना है। सो ये लोग वहां केवल रुके नहीं रहे, ये वहां से आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कहां जाते हैं? अब एलिया एलिशा दोनों यरीहो से आगे बढ़ते हैं और एलिया कहता है कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहां ठहर। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और
भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यर्दन के किनारे खड़े थे। ना अब वो लोग कहां पहुंच गए? यर्दन के किनारे। यर्दन मीन्स जॉर्डन। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पे मारा तो रास्ता बना, और तब उस रास्ते को उन्होंने पार कर लिया। Elijah said to him, "Please stay here, for the Lord has sent me to the Jordan." Now they have started from Jericho to Jordan, and Jordan is the river. They have to cross that river, Jordan River. Jordan means the fullness of the Holy Spirit. Jordan is the place of fullness of the Holy Ghost, where Jesus got the baptism. Bible says in Luke chapter 3, 21, 22, Jesus took baptism in the Jordan River. Jordan itself shows the fullness of the Holy Spirit. You see, Israelis are at the Egypt. From Egypt to wilderness. Wilderness to Jordan. When they cross the Jordan, then they reach to the promised land. The Egypt for them is Gilgal. Wilderness is the Bethel. Then they came to Jordan, and then they reached to the promised land. So we have to get the Jordan experience. Because Jesus also took the Jordan experience. If I am a true Christian, I must have the experience of the Jordan River. Then you will get the promise of God. What promise? The fullness of the Holy Spirit. People still not getting their position because they don't have Jordan experience. We must be filled with the Holy Ghost. That's why we must have this experience. You know, एलिशा और एलिशा एलिया के साथ है, उसकी संगति में है, और जब वो उसकी संगति में है तो सेम अनॉइंटिंग को वो रिसीव करना चाह रहा है। नीति वचन 12:11 कहता है, जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। He who follow worthless pursuits lack sense. And 1 Corinthians 15:33 says, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Do not be deceived. Bad company ruins good moral. मैं आपको यहां पर क्या बात बताना चाहता हूं, एलिशा इस एलिया प्रॉफिट के साथ संगति कर रहा था और उसको आभास था कि क्या होने जा रहा है, लिहाजा उसने बार बार जोर दिया। हर बार एलिया उसको रोकता था कि तू यहां रुक जा, लेकिन उसने अपनी इस कंपनी को, इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशन को ब्रेक नहीं होने दिया, क्योंकि उसके अंदर एक भूख और प्यास थी, उसके अंदर एक लालसा थी, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। वो जानता था, क्योंकि उसने अपनी आंख से देखा था कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे मास्टर के ऊपर कौन सा आत्मा मूव कर रहा है, कैसे वो सेवकाई करता है। मुझे हो ना हो वही अभिषेक चाहिए। हर बार हर स्टॉपेज पे एलिया कहता है तू यहां रुक जा, एलिशा कहता है नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, मैं कसम खा रहा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मीन्स जहां तू जा रहा है उसकी डेस्टिनी कहां है? हेवन। लेकिन एलिया का समय आया है, एलिशा का समय नहीं आया है। सो हेवन जा नहीं सकता है, लेकिन उसके दिल में ये उमंग है कि मुझे वही चीज चाहिए। सो एलिया के साथ साथ एलिशा अपनी चाल को कंटिन्यू रखता है। फाइनली वो जॉर्डन रिवर को पार करते हैं। आपको मालूम, जॉर्डन जो है वो फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट को दिखाता है। वो जो नदी है
पवित्र आत्मा की नदी आपके अंदर भी है, वो बहेगी। उस नदी से होकर पहले गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जॉर्डन रिवर का एक्सपीरियंस नहीं लेता, जब तक मैं जॉर्डन रिवर को क्रॉस नहीं करता, तब तक वो नदी मेरे अंदर से नहीं बहेगी। ये हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 47 चैप्टर को वर्स 3 to 5, ये हिजकिय्याह 47 3 to 5 मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। अभी हम एक और नए तरीके से इसमें से देखते हैं कि भवन की ड्योढ़ी से एक सोता निकल कर बह रहा है, और ये हिजकिय्याह उस दर्शन को देखता है। तब वो मुंह कहता है, मुझे उत्तर के फाटक से होकर वो बाहर ले गया और बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। अब तीसरा वचन शुरू होता है, जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। सुने, परमेश्वर आपके यूं कहूं आपकी पर्सनल फाइल को चेक करेगा। जैसे किसी का इंक्रीमेंट होता है, जब 1 साल पूरा होता है, प्रमोशन का टाइम होता है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट से फाइल मंगाई जाती है और उसको चेक किया जाता है कि साल भर आपका जीवन कैसा रहा कंपनी के साथ। इसी प्रकार परमेश्वर भी आपको जांचेगा, आपको परखेगा कि पूरा वर्ष आपने किस तरीके से जीवन बिताया है। तो कहने का मतलब कि ये दूध जो है, इसको मापने वाली डोरी से मापता है और उसको पहला एक्सपीरियंस देता है कहां तक का? टखनों तक का। टखने मतलब पांव के पास। गॉड्स मिनिमम इज टखना। क्या कहेंगे इसको आप? 47:3। Yes, going on eastward with a measuring line in his hand, the man measured 1,000 cubits. 1000 लिखा है कि 1000 हाथ तक उसे मापा गया। And then led me through the water, and it was ankle deep. So God's minimum is ankles deep. टखनों तक का अनुभव आपको मिलता है। कुछ लोग उसी अनुभव को पाकर खुश होते हैं, छींटाकशी करते रहते हैं एक दूसरे पर। आप देखें, जब टखने के लेवल तक पानी होता है तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं होती है, मटमैलापन होता है, आपको साफ सुथरा नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप फिर भी विश्वास योग्य रखते हैं अपना चलन, ऑनेस्टी के साथ, वचनानुसार, आत्मा के अनुसार चलते हुए, तो फिर नेक्स्ट ईयर उसने फिर उसको मापा। तो जब उसको फिर 1000 हाथ चलाया, तो जब उसे चलाया तो उसका इंक्रीमेंट हो गया। अब वो टखनों तक नहीं है, अब वो एंकल तक नहीं है। बाइबल बता रही है कि अब वो नी लेवल तक आ गया है। इज नॉट एट द एंकल डीप। Again he measured 1,000 and led me through the water, and it was knee deep. अब घुटनों के लेवल तक आ गया। इसका मतलब तरक्की हो गई, अब पानी का लेवल बढ़ गया, यानी आपका अभिषेक बढ़ रहा है, आपकी आत्मिक रीति से ग्रोथ हो रही है। तो ये लेवल जब आया, तो इस लेवल में भी कई लोग आए जिन्होंने ईमानदारी से चलन अपना जारी रखा। स्टिल क्लैरिटी नहीं होती। जब आप घुटने के लेवल तक पानी के अंदर खड़े हो, आप देखेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना आत्मिक चलन जारी रखते हैं, आत्मिक रीति से चलते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, आप अपने आप को आत्मा में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है। बाइबल कहती है उसके आगे, उसने फिर मुझे 1000 हाथ मापकर मुझे चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, अब जल कमर तक आ गया। आमेन। बाइबल क्या कह रही है? अगेन ही मेजर्ड 1,000 and led me through the water, and it was knee deep.
Again he measured 1,000 and led me through the water and it was waist deep. Waist deep means कमर के लेवल तक आ गया. जब कमर के लेवल तक आता है इसका मतलब 50-50 हो गया है. यानी 50% मैं पानी में हूं, 50% मैं पानी से बाहर हूं. पानी की बात कर रहा हूं मतलब मैं आत्मा में उसके अभिषेक में 50-50 हूं. आज बहुत से सेवक, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिनिस्टर, इवन जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो इसी लेवल पर आके अटके हुए हैं, 50-50 के लेवल में. जब आप 50-50 में होते हैं तो एक दूसरे पर पानी की बौछार भी करते हैं, छीटा कसी भी खूब करी जाती है. अभी भी आप स्ट्रगल करते हैं, अभी भी आप इसमें सफरिंग होती है, अभी भी आपको इसमें भरपूरी नहीं मिलती है, जिस फुलनेस की मैं बात कर रहा हूं, जिस डबल पोर्शन की. लेकिन अगर आप 50-50 में रहते हैं, 50-50 में, तो कामयाबी पूरी नहीं है. यानी ठंडा भी है, गर्म भी है, गुनगुने हैं, खट्टा भी है, नमकीन भी है. कई बार नमकीन और मीठा बिस्कुट भी आता है. वो टेस्ट वाला नहीं चाहिए, 50-50 नहीं, फुलनेस चाहिए. मैं फुलनेस की बात कर रहा हूं. तो अगर आप उस लेवल को भी आगे बढ़ते हैं और आप मसीह के प्रेम में, उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं, फिर फर्दर आपका एक इंक्रीमेंट और होता है. और बाइबल फिर वहां ये कहती है तब फिर उसने 1,000 हाथ मापा और वो एक ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था. अर्थात ऐसी नदी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था. 5th verse. Again he measured 1,000 and it was a river that I could not pass through, for the water had risen. It was deep enough to swim in, a river that could not be passed through. अब आपका जल स्तर कितना हो गया है? आपके गर्दन तक आ गया है. जब आप इतना पानी में डूबे होते हैं तब फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी का बहाव खुद ब खुद. प्रेज द लॉर्ड. आपने देखा जब आप कमर तक के इस लेवल में थे 50-50, उसमें क्या होता है, संडे संडे हम आत्मिक रहते हैं और बाकी 6 दिन हम शारीरिक हो जाते हैं. जब तक हम पुलपिट पे रहते हैं, स्टेज पे रहते हैं, प्रेयर मीटिंग में रहते हैं, दैट मोमेंट वी आर स्पिरिचुअल, एंड मोमेंट वी कम डाउन फ्रॉम द स्टेज, नेक्स्ट मोमेंट वी आर रनिंग इन कार्नल. तो शारीरिक और आत्मिक, मुझे हमेशा आत्मिक रहना है. तो जब मैं फुलनेस में आऊंगा, ड्राउनिंग लेवल में आऊंगा, उस तैरने वाली स्थिति में आ जाऊंगा, तो वो पानी यानी वो अभिषेक, वो आत्मा की उपस्थिति, वो दूना भाग मुझे बहा के ले जाएगा. मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिजल्ट ज्यादा आएगा. मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा. ये कब होगा? जब फुलनेस होगी. और फुलनेस नहीं है तो फिर स्ट्रगल चलती रहेगी, चिट्ठियां लिखते रहना इधर उधर, इस चर्च को, उस डिनोमिनेशन को, काम फिर भी नहीं होगा. सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, मेरा और आपका मेजरमेंट किया जाएगा. हेलो, मेरी और आपकी पर्सनल फाइल मींस पर्सनल लाइफ चेक की जाएगी. ये एक दिन में नहीं होगा. आपका चलन कैसा है प्रभु के साथ, यीशु के साथ आपका चलन कैसा है? एलिसा का चलन एलिया के साथ कैसा था? आज की तारीख में मेरा चलन यीशु के साथ कैसा है? आत्मा यीशु के समान है. होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक जीसस. क्या मेरा आत्मा और प्रभु की आत्मा का चलन, फेलोशिप साथ साथ सही चल रही है? ये मुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा. मेरा मेजरमेंट होगा,
मेरा इंक्रीमेंट से पहले मेरी जांच होगी, मेरा असेसमेंट किया जाएगा, मेरा वैल्यूएशन किया जाएगा। अगर मैं इस योग्य पाया जाता हूं तभी मुझे एक लेवल से दूसरे लेवल को पहुंचाया जाएगा, तभी मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाऊंगा। आप सब जो लोग मसीह में हैं खुश हो जाएं कि गॉड्स मिनिमम इज एंकल लेवल। एंकल लेवल से आपका इंक्रीमेंट होगा नी लेवल तक, नी लेवल टू वेस्ट लेवल, वेस्ट लेवल टू ड्राउनी लेवल, यानी टखनों से तरक्की होगी घुटने तक, घुटने से तरक्की होगी कमर तक, कमर से तरक्की होगी गर्दन तक, यानी तैरने वाले अनुभव तक, ड्राउनी लेवल तक। ये 4 स्टेजेस हैं। एलिया के साथ जब चला तो आप गौर करके देखें, वो भी 4 स्टेशन उसको भी पार करने पड़े। जब तक उन्होंने वो 4 स्टेशन नहीं पार किए, वो आत्मा का दुगना भाग उसे नहीं मिला। एलिशा जब एलिया के साथ चला तो गिलगाल से बेतेल, मिनिमम क्या था? गिलगाल। कहां थे वो? गिलगाल। गिलगाल टू बेतेल, बेतेल टू जेरिको, जेरिको टू जॉर्डन। और यहेजकेल क्या समझाते हैं? टखने से लेकर नी लेवल तक, घुटने तक, घुटने से कमर तक, कमर से गर्दन तक। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि जो गिलगाल है जहां पर आप हैं, वो कौन सी जगह है? वो आपका टखना है, आपका एंकल। गिलगाल क्या जगह है? एंकल। बेतेल क्या जगह है? नी। जेरिको क्या जगह है? वेस्ट, कमर। और जॉर्डन क्या है? गर्दन का लेवल, यानी ड्राउनी लेवल। सो मेरे साथ आप एक्शन करें। अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी जगह खड़े हों, अपने टखनों को हाथ लगाएं और कहें गिलगाल, उसके बाद घुटने को हाथ लगाएं, दोनों हाथ दोनों घुटने पर, और कहें बेतेल, फिर कमर पे हाथ रखें, कहें जेरिको, फिर गर्दन पे हाथ रखें, कहें जॉर्डन। जिस दिन आप इस लेवल पे आएंगे, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट यू विल रिसीव, और यू विल रिसीव द फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट। गॉड विल असिस्ट यू। ये एक दिन में नहीं होगा, स्लोली होगा, प्रोसेस में होगा, एक स्टेप टू दूसरे स्टेप में। He will check our honesty. He will check our faithfulness. He will check our commitment. He will check our truthness, whether we are obeying Him or not, whether we are fearing Him or not, whether we are loving Him with our full of heart or not. He will start measuring from knee, from ankle level to knee, from knee to the west to the ड्राउनी लेवल, टखनों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से गर्दन की एक्सपीरियंस तक। मुझे परमेश्वर इस प्रकार से लेकर चलेगा, गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीहो, यरीहो से जॉर्डन, और जैसे ही मैं जॉर्डन का अनुभव पाऊंगा, द फुलनेस केम। आपको मालूम, यीशु मसीह 30 साल तक घर में बैठे रहे। 30 साल की उम्र में जब वो जॉर्डन नदी में उतरे, जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, पूरा कमर तक डुबकी लगा दी, और जल से बाहर खड़े हुए, आकाश खुल गया, और परमेश्वर की सर्वोत्तम आशीष, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट उसके ऊपर आकर उतर के ठहर गई। कबूतर की नाई, होली स्पिरिट उसके ऊपर आकर ठहर गया। फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट उसके ऊपर आ गई। बाइबल कहती है लूका 4 में, जीसस वेंट इनटू द विल्डरनेस विद फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट। आत्मा से भरा हुआ वो जंगल में चला गया। वो सफर फिर शुरू होगा।
If you want to receive that double portion, if you want to receive the fullness of the Holy Spirit, what I am trying to explain you must have the Jordan experience. Tell to the Holy Spirit, ask to Jesus for this experience. Once you get it, oh, it's tremendous changes in your life. You will see the tremendous changes. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. एलिशा ने बोला कि जो आत्मा का अभिषेक तेरे ऊपर है उसका दूना मुझे मिले। मेरे यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या मैं देख रहा हूं मालूम? जो यीशु पे अभिषेक है उसका दूना भाग वो मुझे देना चाहता है, तुम्हें देना चाहता है। सो दैट वी विल डू माइटी वर्क्स और बिगर वर्क देन जीसस। आपको मालूम जब एलिशा के ऊपर आत्मा आकर ठहर गया तो बाइबल कहती है एलिशा ने एलिया से डबल आश्चर्यक्रम किए, चिन्ह चमत्कार डबल हुए हैं। लंबा हो गया नहीं तो मैं बताता, आज का मैसेज ऑलरेडी लंबा हो गया है। अगर कल टाइम हुआ तो और अनुग्रह मिला मुझे प्रभु का तो मैं वो सारे मिरेकल बाय नेम आपको नोट करवा दूंगा। एलिया ने 8 चमत्कार किए, उसके 8 चमत्कार रिकॉर्ड किए गए हैं बाइबल के अंदर। और जब एलिशा के ऊपर इसका डबल पोर्शन आया, एलिया का डबल पोर्शन आया तो बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है 16 चमत्कार एलिशा ने किए। जिस जगह 8वां चमत्कार किया एलिया ने, लास्ट चमत्कार किया, वहीं से सेम स्पॉट से उसने एलिशा ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। वी विल सी टुमारो इफ द टाइम परमिट टू अस। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस पर मनन करना, चिंतन करना, इसका अध्ययन करना, मेडिटेट करना इस पोर्शन को और अपने अंदर भूख और प्यास जगाना कि प्रभु मुझे दुगना हिस्सा चाहिए। तेरे आत्मा का अभिषेक, वो अभिषेक जो तेरे ऊपर है वो मेरे अंदर आए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम 2 मिनट प्रार्थना में चले। राबालीना हखबरू शुबेरी दालीना बेबे बे शिंदुरो राबे ने हेकी बिलीना हखबरा दालीना बा राब्रा रिक्लवाला लावा शदुरो दोना रिबीने हीलीना हकबरे दिले निबे शिंदुरो दोलो न खालीना बरे बेबा राबला ला 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 बशिदा रहंदरी दले हेकी बिनी निली रोने खेलीना खाले ने हेके बेरे दिले नबा शवारा हंदरी दले ने खीलीना हकबरो खोरे बेले ने खीलीना हकबरा न हंदरी रीबा बाबा बाबा बाहोरी दोलो लो 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 बो रिबे नीदी री निबी। I release the anointing, oh I release the anointing। जिस किसी के दाहिने हाथ में दर्द होता है, I command that pain, go right now, leave that body in the name of Jesus। और रबाला ला ला बशिबरो दुलो नुबु शाखरी दले हे बेनी खिलीना हकबरे खीरा बाला ना खाले ने हे खेबेरी दिलीना बा। Lord, I thank you for your mighty anointing, Lord। Thank you for your fullness, Lord। Thank you, Holy Spirit, you are teaching us how to receive that fullness of the Holy Spirit। Lord, Holy Ghost, develop in us the thirstiness and the hungerness, Lord। I want to be purified, Lord। I cry upon you, Lord। Fill me with the Holy Ghost, Lord। I will carry your presence, Lord। I will carry your glory, Master। सारी महिमा मैं आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Lord। Thank you। In Jesus' mighty name we ask. Amen, amen, and amen। Thank you, Jesus। 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 Thank you, Jesus।
Hallelujah, 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 hallelujah. Father, I thank you in Jesus' name. Thank you for this session, Holy Spirit. Thank you for your presence and your anointing, Lord. Thank you so much for your blessings. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the God our Father and the sweet fellowship and communion of the Holy Spirit be upon you forever and ever in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Bless you. मुझे मालूम नहीं था कि आज टीचिंग कैसे हो पाएगी. रात ऑलमोस्ट 11:30 बजे से लाइट नहीं है और रात से पानी बरस रहा था. मैं प्रार्थना तो अपना सुबह उठ के करा क्योंकि लाइट नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा था. मैं भी फिर रिलैक्स मूड में लेट गया. लेटे लेटे मैं प्रभु से बातें करता रहा और प्रभु ने इस टीचिंग को बोला, तू इसी को बोल. मैंने कहा, प्रभु जी मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी, अभी देखा भी नहीं कैसे होगा. प्रभु की आत्मा ने कहा, डोंट वरी, आई एम विद यू. यू विल नॉट टीच, यू आर नॉट ए टीचर, आई एम टीचर, आई विल टीच, आई नो. ओह, मैं बड़ा एक्साइटेड था. मैं वेट करता रहा कब इतनी रोशनी हो जाए. इसलिए मैं समझता हूँ बहुत लेट हमने आज रिकॉर्डिंग किया. Anyway, you will be blessed. I know you will be blessed because this teaching has given by Holy Spirit. Thank you. All the best. See you. Bye-bye.